जिस दिन मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, that evening I called my manager. I said I don't want to do this job anymore. Or I think it was stupid of me. I don't know. I just quit like that. I should have been smarter. अबे मेरे को पहले देख लेना चाहिए था. हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई. We kinda lost quite a bit of money in that business. I think anybody's value comes from their work and not from the status. So is this one of the reason people are failing because they are concerning about their own reputation? मुझे ऐसा लगता है कि इन दीज डेज लाइक इन लास्ट 4-5-7 सालों में जितना सोशल मीडिया का इंक्रोचमेंट हुआ है हमारी लाइफ में, मुझे लगता है दीज एप्स आर आल्सो प्लेइंग अ मेजर पार्ट इन इंक्रीजिंग दोज जेलेसी फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज नाउ यू आर लुकिंग अप टू समवन एंड यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, राइट? आई थिंक जेलूसी का मेन कारण होता है कि बराबरी करना. बराबरी जब नहीं होते ना, दोनों में से एक बेटर होता है, उनसे जलते हैं. अगर मैं बेटर हूँ, मैं किसी से क्यों जलूंगा? अब मोदी जी पीएम है हमारा, वो किसी से क्यों जलेगा? बिकॉज ही इज पीएम. आजकल क्या हो कि इफ यू आर इन द कॉलेज, सम स्टूडेंट यू विल सी दे हैव अ गुड फोन मे बी, बट दे डू नॉट हैव अ गुड फ्रेंड. First downfall came when Big Bazaar went out of business. Anyone want to create something related to distribution या नई एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, what would your advice? Hi Abhishek, welcome to the Open Talk Show. Thanks, Shaheen. Happy to be here. You're welcome. Okay, so I heard that you have you have done your MBA from USA, then you came back to India after 6-7 years, and then you started here in your own business. Okay, I want to know what are the key points you have seen in India that you started your own business. We'll talk about that. Also, we'll talk about your journey, and also I would talk about like how does your business work, so that we will try to find opportunity from our conversations. Yeah. So first, tell me about your childhood too, from the journey you started from the entrepreneur. Sure, absolutely, Shaheen. So, in my school days, I was never a good student, grade-wise. Okay. Right. And well, not otherwise. By the either. way, yeah. So I was kind of mischievous, a very rowdy kid. No teacher wanted, me to Okay. be in her class or his class. So that's how it started in school. But my mom, she was like a super intelligent person. She did her MA in economics at that time. And she was always in scholarships. Okay. So somehow she still had trust in us. Ki you just keep, trying and, study, and someday you will get there. So I think it's because of her pretty much persistence that we all kept trying. So school mein I wasn't doing so well, but for some reason she was finding me like all the best teachers, in Delhi. There were even teachers who has written books in that subject. And I was their student. Mom always try to give the best yes. version. Oh yes. To this. Okay. So she would find me those teachers, and I would do really well in those tuition classes. I was like best student at the tuition class. Oh, interesting. But for some reason, in tuition I was the best ones, and in the school I was the worst one. Okay. So for some reason, Okay. And at that time, so financially we were doing okay, but it was kind of tough to fund those tuition classes. So my dad, like, he wasn't involved in like day-to-day studies or What he was doing? He was in business. He had steel business at that time, but he was kind of busy, and for some reason, typical family, like you don't talk to your father too much. Basically, your family, your dad was not able to give enough time. You can say that, or maybe like we were kind of like hiding from him, because of you're not the good because student. We were scared of him. Yeah. Okay. Yeah, that's normal. Even I used to be like that. Yeah. But he always supported financially, and so whatever we say, like at least at the education level, he would get it done. For example, like in my 10th standard, I got around like 58% marks, if I remember it correctly. And I asked my dad that I want to get into science. But to get into science in our school, you had to have a minimum of, I think it was 60%. So my dad found a way, talked to the principal, kind of convinced him.
and get me into the science. It sounds like super. He's smart too. Oh yeah, somehow, yeah. Okay. So he said, okay, get into science. And I got into non-med, which is like except bio. Hmm. So ho gaya, 12th aa gaya, and I was kind of scared, I wasn't doing that well in studies in school. So, but somehow exams came, 12th board exam came. And there was one of the exam where it was a science exam, physics, I think. And in physics, for some reason, I didn't complete my exam. Hmm. I came out like after half an hour or an hour, did some questions, and I came out for some reason. I don't know why. As soon as I came out, I got scared, man. I was like shit scared. यार ये क्या कर दिया, कुछ तो लिख के आता, अब हो रहा है तो कुछ तो करके आता. मैं घर पे आया, आई वाज स्केर्ड. तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मा आई मेड अ ब्लंडर. मैंने कहा यार आई डोंट नो फॉर सम रीजन जो मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते थे, आई डिड दोज एंड देन आई जस्ट केम आउट ऑफ इट. मेरी मदर ने कहा यार ठीक है चलो, जो हो गया Okay. यू वुड बी फाइन. तो ऑफ कोर्स मॉम मस्ट हैव टोल्ड डैड. तो जब रिजल्ट आने थे, द रिजल्ट, तो एट दैट टाइम वो रात को 11-12 बजे रिजल्ट रिलीज होते थे. यू हैव टू गो टू अ साइबर कैफे टू फाइंड द रिजल्ट्स. तो मैंने कहा पापा मैं जाऊं दोस्तों के साथ देखने, तो पापा डिडंट लेट मी गो अलोन. तो उन्हें लगा यार फेयरवेल हो जाए. और आप नहीं चाहते थे कि पापा मेरे साथ जाए. Exactly. Okay. But I think he was a little scared too because कि भाई कुछ करना ले यार बच्चे. But I wasn't like that kid. Okay. कुछ करता भी, अगर फेल भी हो जाता. But anyways, तो for some reason my dad told me कि तेरा एक एग्जाम में री आया. एक एग्जाम में री आया. Okay. I don't know what you call that. मतलब you have to give that one exam again. मतलब I don't know the full form. You haven't Re passed बोलते it थे yet. हमारे. हाँ, एक एग्जाम में आप फेल हो गए, एक बैक आया, राइट. आई वाज स्टिल हैप्पी. मैं ठीक है यार, एक एग्जाम तो दे ही देंगे, पास तो हो ही गए. तो और पापा लेके चले गए मेरे को. मैं साइबर कैफे में गया हूँ, मैं देख रहा हूँ. मैंने कहा भाई रिजल्ट दिखा दो. उन्होंने रिजल्ट दिखाया एंड आई वाज पास इन ऑल ऑफ देम. मतलब ये पापा ऐसा बोला क्यों? I think he wanted that blow to be softer. Okay. If I think. Okay. I think he assumed कि एक में री आया, इसे ऐसा बोलेंगे तो he would be fine. I don't know why he did that, but I think it was more because of that. कि इसे ज़्यादा घबराहट ना हो. Okay. तो उन्होंने, अब मेरे को डाउट हो गया. मैंने कहा पापा ने तो कहा एक में री है. तो मैंने उनसे बोला दोबारा चेक करो यार आप. तो I rechecked my results. मैं पापा को कहा, मैंने कहा पापा ये तो मैं पास हो गया हूँ. So he was very happy. I danced all night. So that was the school time, So the reason I took science was I wanted to get into engineering. But इतना अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ मेरा. तो स्कूल में ही मैंने ध्यान दिया. I didn't prepare for engineering exams होते हैं जो. तो एग्जाम्स की तैयारी किया नहीं था. तो then I got into BCA. Okay. Which is Bachelor in Computer Applications. How you came to the USA कैसे गए? तो यूएस का क्या हुआ यार, उसका भी एक लंबा स्टोरी है. तो so what happened was I was doing my bachelor's in computer applications. And so because I wanted to do something in IT, right? So at that time when I was studying, I think I was in a fifth semester. Okay. So at that time क्या हुआ, I used to read a lot of newspaper. तो newspaper में there was this article that lot of US UK universities are coming together in one of the hotels in Delhi. Okay. And they will be doing a seminar kind of thing there. So I said okay, what's wrong in going there? And the reason I wanted to go to US because of one of my uncles. So his name is Ranbir Gupta. Okay. He was the first from our village, let's say, or even our district, who went to IIT Kharagpur. From there, he went to US for studies, masters. Okay. And he created a successful architecture business. Interesting. In USA? In USA. Okay. And he's a renowned architecture there. In fact, there is a school named after him in IIT Kharagpur. The school name is Ranbir and Chitra Gupta School of Architecture, Infrastructure, sorry. Okay. So, and he's big in philanthropy. He has met like pretty much all the prime ministers, presidents. Oh. And he does lot, and my Taiji too, his wife, they both do lot of philanthropy work.
So he has been like an inspiration for me, you know, like from the very beginning, that I want to be like him. So, and I found a way, because I wasn't so good in studies to get into engineering. So I thought, you know, this could be a way for me to get into a US, get a good education, and, you know, get it going. Yeah, because the inspiration is there. Yes, inspiration is there. Okay. So, luckily, we found a institute called AIT, Ansan Institute of Technology in Gurgaon. They had a bridge program where, in that program, what they do, you have to study for a year in India, and then you complete your rest of the studies in US. Okay. Huh. So, and that was a good way, and it's a cheaper way too, because instead of studying 2 years in US, which would be more expensive, it was a little cheaper. Okay. And so I got into that, but then we realized that the fee is very high. And I don't know, my father so we had only one property on our name, and he took a loan over it to get me to the MBA. So that was like kind of, you know, That's emotional, quite like yeah, you know, and सब कुछ अपने वो yes, लगा दिया आपने. yes. I was like, man, I mean, it's just so much pressure, you Yeah, know, pressure, on right. your he has, you know, done so much for you. Abhi to you have to be successful. Yes. There is no way Yeah. back, you know. I mean, Yes. you don't have a choice. इतना बड़ा pressure था, but it was for good, I guess. So I went there, I did my MBA, and my uncle supported me too financially in some way there. So that pressure was released a bit. But तो वो एक mindset आ गया कि you have to make money from the very beginning. Correct. तो जब हम MBA करने गए वहाँ पर, we were 6 people from our class. Okay, I'm gonna have one question here. You said that is the mindset. So, what is the key point which is make you feel to earn money and that moment? कि पैसा कितना important था और क्यों था? For me, really, one thing was, at that particular time, it was that कि मेरे पापा ने trusted me so much, I have to, you know, Get it back. get it back. That was one thing. The other thing was, as I was saying earlier, right? We were financially okay. I mean, I won't say like, you know, we had that much difficulties, but for some reason in our family, we just never had, you know, any luxury kind of thing, pretty much, you can say. I mean, we had good enough luxuries, ठीक है. but as a child, you know, I just had this mind that I want to give my parents the best life possible. Correct. That can be from the money, you know. So that was pretty much it. I have never been a materialistic person. तो मेरे को for myself, you know, I never had that feeling कि यार बहुत पैसा चाहिए. It is more about like I want to make sure, you know, my family is secured. So that was pretty much the motivation in the beginning. Okay. Yeah, I got it. Yeah. Okay, so you have completed your MBA over there. What is there any challenge you have received like doing yes. this? Well, in the beginning, yes, there were quite a few challenges. In India कैसा होता है ना, हमारे घर में we don't even keep our plates to the kitchen. हाँ, वो खुल के बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. क्योंकि वाई आई जनरली सी दैट इंडिया में क्या होता है, लोग बोलते भी है कि यहाँ पे लेना सोने के चम्मच लेके बच्चे बड़े होते हैं, राइट? बट ये चीज अब्रॉड में नहीं है, एंड इवेंचुअली दे आर वेल रिच कंपेयर टू द आस, राइट? दे आर वेल रिच एंड दे आर वेल हैव अ फ्रीडम. बट इन इंडियन पीपल लाइक, यू नो, मुझे रोटी बना के दो, मुझे खाना बना के दो, अगर नहीं मिला तो ऑनलाइन जोमेटो कर दो. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, कोई बना के दो, नहीं तो मैट रख लेते हैं, ठीक है? और वो अच्छा खाना भी नहीं बनाता तब भी ओके है. सही बात. बट मुझे लगता है कि आपको खुद को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर योर ओन एक्सपीरियंस. ओके, प्रैक्टिस करो और आपको अच्छा खाना, बाय द वे, सीखना ना एक अलग ही मजा है, आना चाहिए. ठीक है? ओके, सो प्लीज टेल मी आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड. सो वहाँ चले गए यार, एंड अभी at least what I wanted that कि हम, so there is a program that you can only work for 20 hours in a week when you are studying, and you have to find a job in the university itself. तो यूनिवर्सिटी में मेरे को बर्तन धोने का जॉब मिल गया. तो I was studying 4 days and वो $6.25 an hour देते हैं मेरे ख्याल से. यूनिवर्सिटी pays you, okay, and you can find these jobs. But for some reason that was my first job. But for some reason, I won an award in that too.
you know, so one of the best employees in Yeah. Bartan Dona in a way. Mm. So that hard work, that you know, that mentality of doing hard work, I think came from there. So then I did multiple other jobs. Bartan dhoye, uske baad I got into serving. I even started getting into cooking because, you know, they liked your work. So then I said, yaar, ki now I want to change it. So they moved me to, let's say, a counter or to something else. द गुड पार्ट अबाउट दैट कि वहाँ पे ना लोग जज नहीं करते Oh आपको, yes, that is the best. यहाँ पे बहुत करते Oh हैं. yes, yes, yes. डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना, मतलब व्हाई शुड वी थिंक वी शुड चेंज आवर माइंड? Yeah, I think anybody's value comes from their work and not from the status. आई लाइक दैट. You know, status based तो इज्जत सभी दे रहे हैं ना, पैसे वाले, और स्पेशली इन इंडिया. यूएस में भी देखा है मैंने होते हुए, लेकिन बट दैट इज देयर एट द वेरी हाई लेवल. तो यूएस के अंदर कैसा है कि ऑफ कोर्स इन गवर्नमेंट, सो आई वाज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर कमिश्नर्स रहते हैं वो सब इस तरीके, असिस्टेंट कमिश्नर्स रहते हैं, कमिश्नर्स रहते हैं. तो उस लेवल पे यू वुड सी दैट डिफरेंस, द वे पीपल एक्ट विद द सर्टेन पोजीशन पर्सन. बट इन जनरल everyone is so cool, nobody cares about your status, nobody cares about your status outside the office. अगर कमिश्नर का इज्जत है वहां पर, is good thing, but let's say I find him, you know, roaming around, he will be very cool, you know, he won't see me as a, you know, somebody like a, so I would be like, let's say 5 levels down from him. It won't matter to him. They don't see that. They don't see that. So I think that is the one of the beauty, I think. yes, है? absolutely. और यहाँ पे इसका कमी क्या है? हमारे इंडिया में क्या कमी देखते हो इस मामले में? इंडिया में कमी क्या है? I think it's a socio economic structure that we have. अच्छा. So I think these things came in our system because of we had these systems from the very beginning. Caste system was there. You know, in my mind, in that same thing, ये इंडिया में ही है, आई थिंक. ओके, मोस्टली ओके. जो आपको काम को लेकर जज किया जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द अदर रीजन दैट इज द कास्ट. Yes. ओके, एंड देखो इसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहिए, बट इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल. पीपल आर लाइक, Yes. आजकल तो इसको लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं लोग, Yeah, yeah, yeah. है ना? Well, so in our family we never believed in that systems. So we were raised good. तो हमारे लिए it's easy और I think we raised good because our uncle went there, my other uncles went there. तो सबका दिमाग खुल जाता है फैमिली का ना, तो हमने कभी चिंता नहीं करी. बट आप बिलीव नहीं करोगे, there were times even in our family, like in older times, of course there would be a certain caste who would be doing certain particular job. करेक्ट. ठीक है, अभी let's say for example, I don't know about particular caste, but let's say there is a caste who used to sweep, for example. And in those times, in our genes or in our like biologically, that thing comes down to a little bit, I think, कि हमने कहा यार उस कास्ट का बंदा झाड़ू लगाता है तो इट्स हिज जॉब, राइट. अब अगर हमारा ये सिस्टम नहीं होता, तो अगर मैं झाड़ू लगा रहा होता, it wouldn't have mattered. I have read about this particular things. Yeah. Why Indians happen like because if you see ना, पहले बुक्स कौन पढ़ा करते थे? इफ यू जनरली अंडरस्टैंडिंग, ओके, देयर इज ओनली पर्टिकुलर यू नो कास्ट ओनली, उसको ये देते ऑथोरिटी थी, दे आर ओनली हैविंग ऑथोरिटीज एंड रेस्ट ऑफ विल बी लाइक कि उनको छूने से खराब हो जाएगा. तो दोस वन ऑफ द रीजन कहीं ना कहीं ये चीज मतलब सोसाइटी में है अभी भी. और आई थिंक बाय द टाइम ये चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो गया. आई थिंक मतलब मेरे को मतलब जैसे दिल्ली वगैरह में तो आई डोंट सी दैट. पहले क्या था, आज क्या है, उस हिसाब से. तो आगे जाके भी चेंज होगा. एग्जैक्टली. तो मेरे को तो नहीं दिखता है अभी, शहरों में तो नहीं दिखता है. आई एम श्योर कि अदर रीजन्स would have that problem. It's still in the town side, and they still have the similar mentality. There is not only the one way, there are another way. If you're earning less amount, okay, that's one of other reason to people will be saying like, you know, it's not about the caste, it's about because you're poor, so you have a different level. Yes. So I think it's not because whoever see this, like जो भी इंसान ये देखता है कि वो आंसर पूर है बिकॉज वो पैसा कम कमाता है. इमेजिन आप जो उस हायर लेवल पे हो ना, आपके पास ज़्यादा पैसा आप उनको देते नहीं, उनकी मेहनत का पैसा, इसीलिए वो वहाँ पे है. अगर आप एक एवरेज अमाउंट पे अगर होता जस्ट लाइक अदर कंट्रीज, तो शायद वो चीज़ नहीं होता.
यार आप एवरेज अमाउंट नहीं बढ़ा सकते ना, मतलब एज अ फ्रॉम एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से फॉर ये एग्जांपल, गवर्नमेंट का फंडामेंटल में आएगा जितना Yeah. मेरे को समझ आता है. yeah, but for me as a person to person, right? Hmm. Let's say there is an average salary of a driver, let's say, Hmm. is 22,000 a month, for ठीक है. example. It can range from 18, let's say, to 25, 30. अब कोई 1.5 करोड़ का गाड़ी चला रहा है, तो of course he would have a different, but in general, let's say there is the average salary would be 22, for example, Hmm. for the sake of the discussion. Hmm. अभी मैं अपने बिजनेस का ही बताता हूँ आपको. अच्छा, ये तो पॉडकास्ट पे भी आएगा. Yeah. But We'll take care of that. Yeah. Please go ahead. But I'm just saying, so let's say मेरे बिजनेस में भी कोई और पोजीशन है और 10 लोग हैं उस पोजीशन पे, राइट? अब एक उसमें से एक पर्सन है जिसको आई वांट टू पे हिम हायर, Hmm. बट ही डज द सेम वर्क, बट आई वांट टू पे हिम हायर बिकॉज ही इज विद मी फॉर लाइक अ लॉन्गर टाइम, ही इज लॉयल टू मी. तो उस वजह से मैं चाहता हूँ, Yeah, that's genuine, I think. तो मैं थोड़ा बहुत तो उसमें कर सकता हूँ. Hmm. अगर मैं ज्यादा करूंगा फर्क, Hmm. तो either I should increase that salary for everyone, Hmm. because they deserve everything. Everyone Complete- deserves the same salary, right? In a way. Hmm. 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 तो partiality हो गया. बहुत ज्यादा दे दूंगा तो मैं survive नहीं कर पाऊंगा as a businessman. क्योंकि there is a cost to everything. I know. Right? Yeah. And once it, अगर मेरे पे एक ही हो वो बंदा, I might be able to survive. बट अगर मेरे पास लेट से 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, जितनी भी होती है जैसे जनरल बिजनेसेस में, Hmm. तो उस लेवल पे यू हैव टू थिंक थ्रू. Hmm. सो इट्स रियली नॉट अपॉन बिजनेसेस टू. हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं एज अ बिजनेस पर्सन, हम बहुत ज्यादा उस एवरेज से आगे पीछे नहीं जा पाते Okay. इन जनरल. तो सिर्फ आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सैलरीज कि हम कहीं की सैलरी कम है तो वी लुक अपॉन look down on somebody. I don't think that is the way. It's But- just that culture that is built around everything that like आप नहीं करोगे ना, तो जो कम मतलब एट द लोअर लेवल है वो आपको इतनी इज्जत देना चाहेगा कि आपका भी मन कर जाए ले ही ले just because of money. Okay, one of the point here. But it's just the system. It is the way it is built. Hmm. But it's changing. It I could be hope changed. it changes quicker, and I hope it changes sooner. Okay. Yeah. So let's come to the point. After your MBA, you came back to India. What After MBA, I worked in US for a few years. Okay. Yeah, I was working for Department of Social Services for various states. Okay. So those departments used to work for children welfare. Oh. Yeah. So I worked there as a business analyst. Then I was promoted as a project manager in Hmm. IT. I worked in New York City, Mm-hmm. for Virginia state. And then I got into one of the companies called Theracom. They were into supporting people who couldn't afford, the expensive drugs. Okay. Yeah. So I did that for 5 years in US, Mhm. and then I did that for 3 another years from work. I was working from home in India. Okay. So आपने जो जॉब करा उसके बाद वहाँ से what get you there in India? Then what are the key points to start your own business in India? तो जो इंडिया आया मैं, तो that was more of course I had a one-way ticket when I came back because I wanted to come back to India. Okay, a one-way ticket. Yeah, Okay. I did that. I tried that in 2009 or 10 too. Okay. कि आ जाते इंडिया एक वन वे टिकट ले, लेट्स फिगर आउट समथिंग, बट नहीं हो रहा था. समझ नहीं आ रहा था क्या आपको करना कोई है. अपॉर्चुनिटी वहां से इंडिया में देखा? नहीं, मैंने देखा ही नहीं. अच्छा. मेरे दिमाग में आ रहे थे चीजें. तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आपने देखा है सिबिल स्कोर चलने लग गया. 2010-11 में ये सब नहीं था इंडिया में, नहीं 14 में आई थिंक आया था वो. प्रोबेबली. Probably. तो मेरा एक दिमाग वो था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या. बट आई वॉज इन IT, तो मेरा दिमाग चल रहा था, बट मैंने ट्राई नहीं किया. फ्रेंकली स्पीकिंग, आई नेवर वेंट फॉर इट. बट सिबिल हो गया, चाहे आपका कार think देखो वगैरह आया मे बी इट डज, बट वो कि हाँ, हाईलाइट नहीं था. लोगों को पता नहीं, हाईलाइट नहीं था वो. प्रोबेबली. हम्म. फिर एक कार देखो जैसी चीजें आई थी, ये जो चीजें आई, दैट वाज नॉट देयर इन इंडिया एट दैट टाइम. इट वाज इन US. देयर वाज दिस कंपनी हु वाज डूइंग इट. देयर वर कपल ऑफ थिंग्स इन माइंड, बट आई नेवर वेंट फॉर देम. तो जब इंडिया आया, तो इंडिया वाज अ पर्सनल रीजन कि यार चलो इंडिया आना है मेरे को, एंड आई विल स्टार्ट अ लाइफ हियर नाउ. ठीक है. क्योंकि जितना लेट होगा इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू कम बैक. तो 2011 में आई केम बैक. अभी देन आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द सेम कंपनी फॉर अनदर 3 years. Really? Yeah. In that time? Yes.
To So I work think I on- would be the longest like of office out of office person for that company ever. So Interesting. yeah, so 3 साल उन्होंने किया. They didn't, तो 3 साल हो गया था. 2014 की बात है. At that time, तो मुझे लगा यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा. And elections were coming. Hmm. I think it was June, July 2014. जिस दिन मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, Hmm. That is right. that evening Hmm. I called my manager. I said, I don't want to do this job anymore. And I had to say something, right? So I said, either you increase my salary twice or I will quit. And वो भी मेरा जो मैनेजर था वो भी he was Indian, राहुल was his name. तो उसने कहा भाई तेरे को क्या हो गया? मैंने कहा भाई हो गया बस 3 साल, क्योंकि मैं यार रात को काम कर रहा था. मेरा ऑफिस 6-7 बजे शुरू होता था, सुबह 3-4 बजे तक चलता था. Hmm. और हम मकान भी बना रहे थे. फिर मैं वहाँ मकान पे जा रहा हूँ तो मैं पागल हो चुका था. और मैं आई हैड अ किड इन 2012. तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी. Responsibility. माय अम्मा जी, माय दादी जी Hmm. वाज लिविंग विद अस. शी वाजंट वेल, Hmm. वो भी थी. तो Hmm. इट वाज जस्ट टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन ऑल अलोंग. तो जब इतनी सारी चीजें चल रही थी तो मैंने कहा यार अब छोड़ देते हैं, कुछ अपना करेंगे. ठीक है. और आई थिंक इट वाज स्टूपिड ऑफ मी. आई डोंट नो, आई जस्ट क्विट लाइक दैट. Why you said it's put stupidity? आई थिंक आई शुड हैव बीन स्मार्टर अ बिट. Okay. मेरे को पहले देख लेना चाहिए था अच्छा. कि क्या करना है. Meanwhile, आपने वो fail zone देखा है. Is that? Yeah. Okay. Okay. Yeah. हाँ. So I got into a business with one of my cousins in infrastructure. Hmm. तो L&T कंपनी सबने सुना होगा. Mhm. तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जो बना है ना, उस पे समझ लो 50-60% ऑफ ब्रिक्स आर मेड बाय अस और सप्लाइड बाय अस. Oh, really? या वी गॉट इनटू दैट बिजनेस. अब मेरा माइंड ना थोड़ा सा कभी बिजनेस किया नहीं था. इट वाज अ फर्स्ट बिजनेस ऑफ आवर्स. तो मेरे से क्या गलती हो गया कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, जो कॉस्टिंग की निकालनी होती है ब्रिक्स की. एंड वी काइंड ऑफ लॉस्ट क्वाइट अ बिट ऑफ मनी इन दैट बिजनेस. तो फिर मैंने कहा यार, और वो बिजनेस मेरे को अच्छा भी नहीं लगा इन अदर सेंसेस टू. तो मैंने कहा ये तो नहीं होगा. एंड आई लेफ्ट इट एंड आई सेड ओके आई विल लुक फॉर समथिंग. मैं ढूंढ रहा था, काम देख रहा था. तो मेरा एक फ्रेंड है कपिल, ही इज इनटू एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. तो मैं उसके ऑफिस चला जाता था. मैं कहा सीखो तो एटलीस्ट गेट द फीलिंग ऑफ बिजनेस, राइट. जॉब से आके, और वो भी यूएस से, फिर घर में काम किया है, तो इंडिया तो देखा ही नहीं ना बहुत सालों से. तो मैंने कहा थोड़ा फील तो लेते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. तो उसके साथ बैठने लगा. तो उसने भी मेरे को कॉन्फिडेंस दिया. वो कहता है यार तू कर लेगा, आई थिंक यू शुड गेट इनटू एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay. और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट. Traditional, हाँ. जनरली पीढ़ियां करती आ रही हैं. I don't know, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा challenges लगता है. अरे बहुत सारे It does? challenges हैं. ओह यस. क्योंकि I used to work in procurement, so I saw that. ओह यस. कितने सारे लेयर होते हैं भाई. Too many things, too many parts that have to come together, है ना? to make a symphony. Yeah. Yep. कितने सारे लेयर होते हैं. Okay. Yep, Multiple layer. Yep. Okay, and सारे लेयर इम्पोर्टेंस है. Yes. Right? Okay, so Yes. after that? तो उसने कहा कि यार अब कर लो. मैंने कहा हाँ चलो यार ट्राई करते हैं. Hmm. तो इट वाजंट लाइक अ ड्रीम थिंग और कुछ ऐसा था. मैं चलो करके देखते हैं थोड़ा सा. Hmm. तो मेरा एक बस, मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस ऐसा कैसे चला कि एक कंपनी आए, गोदरेज जमीज करके एक ब्रांड है, फ्रोजन फूड्स में. ही केम एंड ही सेड कि चलो अभिषेक हम आपके साथ काम करेंगे. आई सेड ओके लेट्स गो अलोंग विद इट. हमने शुरू कर दिया. अब जब शुरू किया तो छोटा सा बिजनेस था. तो मेरे पापा के पास कार थी. Hmm. तो मैंने क्या किया, उसी कार से मतलब शाम को मैं बिल काटूंगा कंप्यूटर पे. और आईटी का पर्सन था, तो ये आईटी वाईटी तो आता था, तो बिल काटना ये सब तो मेरे को पहले से, मतलब इट वाज इजी फॉर मी. कंप्यूटर पे बिल काटा, शाम को बैठ के सुबह स्टॉक निकाला गोडाउन से, गाड़ी में डाला, सप्लाई किया, आ गया. So I did that for like couple of months. I enjoyed it. तो फिर मुझे लगा यार quite easy to in the beginning, but it's quite easy. Yeah, and I think मैं वो कर भी इसलिए पाया क्योंकि मैं यूएस से आया था ना. मेरा माइंडसेट वैसा था कि यार काम से शर्म नहीं. मुझे लगता है कि अभी मेरे को, मतलब आई सी पीपल, तो वो कहेगा यार शायद कोई लोग होंगे ऐसे, वो नहीं करेंगे या वो पहले ही हायर कर लेंगे. यू नो आजकल यही होता है ज्यादातर. या तो मेरे को लगता है मेरे को हेल्प हुआ कि बिकॉज ऑफ यूएस माइंडसेट.
कि वहां से पढ़ के आए थे तो कोई काम की शर्म नहीं है. इवन आई फेल्ट प्राउड अबाउट इट एक्चुअली. तो आई कीप टेलिंग माई एम्प्लॉइज, नए एम्प्लॉइज को भी मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, मैंने सब कुछ कर रखा है. So is this one of the reason people are failing because they are concerning about their own reputations? यार रेपुटेशन का भी क्या है ना, जो मेरे को समझ आता है. नहीं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? या तो क्या ऐसा है कि कोई अगर फेल होता है कि बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर है, पहले स्ट्रांग बनना चाहता है, जैसे आपने बोला एक चीज़ सीख के आया, क्या आपको ये चीज़ इंडिया में जनरली दिखता है लोगों के काम में, माइंड में? यार मेरे को ऐसा लगता है कि लोग रेपुटेशन से इसलिए भी ज्यादा जुड़ रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम इन क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटस भी प्रोवाइड करता है. स्टेटस अब ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटस का इसलिए भी हो गया शायद बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोशल मीडियाज. एवरीवन इज कंपेयरिंग देमसेल्फ. करेक्ट. अरे यार वो मेरे लेवल का बिजनेस करता है तो हाउ ही लुक्स. दो चीजें होती हैं, एक तो होता है यू फील जेलसी, एक होता है यू फील इंस्पायर्ड. करेक्ट. तो मैं कहता हूँ यार इंस्पिरेशन लो सबसे. जहां जेलेसी आ गया यू आर डूइंग द वर्स्ट थिंग टू योरसेल्फ. उसका तो क्या नुकसान करोगे, किसी का क्या करोगे तुम. यू रून योरसेल्फ. या बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मैं ये बोलूंगा, whoever taking jealousy, they are not good enough in themselves. I don't judge people. So I shouldn't say it's that. It's not a judge. Right? It's just see that. Imagine, okay, एक बंदा दूसरे बंदे से jealousy था. Why? Because someone is doing better. ठीक है. Better or worse? तो अब better का भी क्या definition है यार? मतलब मान लो जेलेसी क्यों होगा, कोई भी अगर आपसे आपकी बराबर जॉब करता है या आपकी बराबर काम करता है और वो अच्छा है तभी तो आपको खराब बुरा लगेगा. अगर मैं उनसे अच्छा हूं ना, मुझे जेलेसी होगा ही नहीं. हाँ लेकिन जेलेसी कैन बी लाइक फॉर वेरियस रीजंस, राइट. आई मीन आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट एग्जांपल्स. गिव इट. अब मेरा कोई कलीग है, अब मेरे को जेलेसी हो कि यार ये इतने अच्छा से बात करता है, और अगर यंग थे हम लेट्स से, मैं कहूंगा अरे यार ये तो फीमेल कलीग से इतना घुलता मिलता है, मैं तो इतनी बात नहीं कर पाता हूँ. आई फील जेलस अबाउट इट फॉर एग्जांपल. या द वे ही प्रेजेंट हिमसेल्फ और द वे ही ड्रेसेस, या फिर उसकी हमारे मैनेजर से बहुत अच्छी बनती है. देयर कुड बी वेरियस रीजंस. करेक्ट. लेकिन हो सकता है 3 चीजों में मैं अच्छा हूँ, वो बेटर हूँ लेट्स से. 4 चीजों की अगर बात कर रहे हैं तो 3 में मैं अच्छा हूँ, तो मैं वो 3 चीजों की तो चिंता नहीं कर रहा हूँ या प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इन 3 में तो अच्छा हूँ. वो जो एक चीज है जो उसकी बेटर लग रही है, आई फील जेलस अबाउट इट. तो एज अ पर्सन भाई तू भी तो अच्छा है, यू हैव सो मेनी गुड ट्रेड्स, तो व्हाई यू वरी सो मच अबाउट. द पॉइंट इज दैट हियर इज द पॉइंट, ओके, समवन इज समथिंग, समवन हैव अ स्किल, दे आर बेटर ऑन दिस, ओके. अगर आपको जलन होते ना, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप पे देख रहे हो वो चीज का कमी है, और यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर नॉट गेटिंग दैट, यू वांट टू डू दैट, ओके. कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन आता है. आई थिंक जेलसी का मेन कारण होता है कि बराबरी करना. जनरली करेक्ट. यस ओके. और बराबरी जब नहीं होते ना, दोनों में से एक बेटर होता है, उनसे जलते हैं. अगर मैं बेटर हूं ना, मैं किसी से क्यों जलूंगा. यस. अब मोदी जी पीएम है हमारा, वो किसी से क्यों जलेगा, बिकॉज़ ही इज पीएम. अगर कोई जलेगा ना उनसे, वो नीचे है. जनरली इट इज. यस, यू आर राइट. सो वो एक कहावत भी तो थी ना, हाथी अपनी चाल चलता रहता है, डॉग बार्क्स आफ्टर हिम. Okay. तो वही वाली कहावत हो गई है. तो वही वाली. तो probably that is what it is. So I feel like कि आप अपना करो, you give your best, you feel inspired, but don't get into this jealousy mode. And think जो मेरे को लगता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम and all this stuff, कि मुझे ऐसा लगता है कि in these days, like in last 4, 5, 7 सालों में जितना सोशल मीडिया का encroachment हुआ है हमारी लाइफ में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और whatever, मुझे लगता है these apps are also playing a major part in increasing those jealousy factors and everything, because now you are looking up to someone and you want to be like that person, right? तो पहले हमारे सोशल सर्कल ही थे, तो हम 10 लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, 10 लोगों से ही जेलस हो रहे होंगे फॉर एग्जांपल, या नहीं भी हो रहे होंगे, बिकॉज इट वाज अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटीज. अब सोशल मीडिया तो सब कुछ है ना यार. तो सोशल मीडिया में तो एक से बढ़कर एक चीज दिखती है. अब जब एक से बढ़कर एक चीज दिखती है, तो आई थिंक ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक है, जेलेसी है, ऑल दीज थिंग्स आर क्रीपिंग इनटू आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ दीज सोशल मीडियास. I have a question. So you come from the generations where when you were doing your college day, आपके पास कोई फोन नहीं था, मतलब फोन अगर था होगा, सोशल मीडिया नहीं था. Yes. Okay. आज की जनरेशन में सोशल मीडिया है. So what are the key differences आपको दिखता है? सारे डिफरेंस हो गया. The lifestyle has totally completely changed.
As a student, you want to know, let's say? नहीं, as a person, whatever you feel. I mean, so it will be different, right? For a younger generation, it is way more different than what it would be for an adult. I think, in my belief, in my college life, I do not have social media. Yes. I used to have a smartphone because it was just open it. हमारे फोन में सिर्फ FM चलता था. True. Right? True. Maximum That social. was there, yes. That's maximum social media is Yes. at FM. Yes. ठीक है. उसके अलावा टीवी में नहीं चलता था. हाँ, कुछ भी नहीं था. हाँ. I don't तो think. धीरे धीरे ये चीज आया है. Yeah. पर वो वाला मुझे जनरली वो वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कि वी इवेंचुअली फोकस इन रिलेशनशिप, लाइक फ्रेंडशिप, दोस्त ह्यूमन रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करें. आजकल क्या हो कि इफ़ यू आर इन द कॉलेज, सम पीपल, इफ यू सम स्टूडेंट, यू विल सी दे हैव अ गुड फोन मे बी, ओके, बट दे डू नॉट हैव अ गुड फ्रेंड्स. Yep. True. So true. Okay, So- because they are only connected with their social media. They Yes. thought there is some people exist Yes. and not in the same place जहाँ पे वो पढ़ाई करता है, जहाँ पे वो रहता है. Okay, Yes. I'm not talking about the Pacific people. Like Mhm. कुछ लोगों का इतने दोस्ती अच्छी होते हैं कॉलेज में तो वो अलग ही होता है. But Mhm. in that way also there is a people exist. Yes. Okay, जो ऐसा है कि कॉलेज में उनका फ्रेंड नहीं है because of the social media, because they thought they I have already people around. Okay, so what do you see? What's your opinion? I totally agree with you. तो पहले when there was no social media ना, तो अब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, तो मैंने स्कूल पास आउट किया 2001, कॉलेज किया 1 से 4, 2001 से 2004, राइट. उस टाइम तो फोन भी नहीं थे, और थे भी तो यू कुडंट अफोर्ड इट, क्योंकि वो कॉल का रेट ही शायद इनकमिंग का भी 30-40 रुपया था, राइट. तो उस टाइम क्या होता था हमारे पास, एंड ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, राइट. सो यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड पीपल अराउंड यू. कुछ और चीज है ही नहीं. You don't have a single distraction. Right. So all you have is your friends or your family. तो जब आपके पास वही है, तो you would be trying better to get along with them. Correct. You know, and you would be bonding much better with each other, even with your family or friends, you know, or whomever, you know, even professionally, because life are interconnected. जब सोशल मीडिया आ गया, what I see कि you don't feel the need to have that friend, because you already feel कि यार कुछ ना कुछ है. so many people. जब भी मुझे बात करनी है तो I can speak to somebody. But बात तो हो रही है, but you guys are not connected at the deep level. कि जो कहते नहीं यार, पुराने जमाने की दोस्ती तो यार बड़ी गहरी होती है. आज भी है ये, इसका एग्जांपल आज भी है. मेरे फ्रेंड्स हैं जो बचपन के, उनसे जो मेरा कनेक्शन है, उसके बाद ऐसा नहीं है. यू गेट फ्रेंड्स थ्रू आउट योर लाइफ, राइट. कॉलेज में भी बनेंगे, फिर प्रोफेशनल लाइफ के टाइम में भी बनते हैं, और बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं. लेकिन वो जो बॉन्डिंग मेरी उस टाइम से लोगों से है, वो बॉन्डिंग आई कैन नॉट कंपेयर विद एनीबडी एल्स. क्योंकि you were kind of like everything was dependent on each other. It's just amazing life, you know, like it was a true socially connected group of people living together. Abhi socially connected to hai, but it's through, you know, all the electronics. Correct. So I don't see that connection, you know. I mean, I see just too much jealousy and all that stuff. I don't like it. Okay. I try my kids not to get into social media. I myself try to avoid social media as much as I can. I don't have Instagram account. I don't use Facebook. I do have an account, but I don't use it. I try to stay away from it. But yeah, so that's I felt my that thought too. on it. You know, I felt that too. But eventually, it's my job to part of it. Okay. Oh yes, I mean for you that is a part of but the job. You know, I got to understand that. एक टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना. I want to be my own isolated place where I can be with whoever सामने है उनके साथ मैं रहूंगा, और not that कि सोशल मीडिया में. मतलब I saw the disturbance in myself कि वो किस लेवल तक डिस्टर्ब आपको करता है mentally especially. Then that I understood कि मुझे तो करना इसी में है कुछ. True. Okay. And I'm doing that. No, I mean you use social media for whatever work purposes you have. You know, बड़े लोग की बात करें तो वो लोग यही करते हैं. Yes. But you don't get into those scrollings, you know, all that stuff. Those things are bad about social media. Correct. So electronic social media, सब चीजें ठीक है ना. आप limited है. Let's say you assign your time. Let's say मैंने कहा मैं 15 मिनट सोशल मीडिया यूज करूंगा. Let's say 15 मिनट में आपका कितना बिगड़ेगा. But
who has that discipline to use that only for 15 minutes? You have to have that discipline. Correct. And that constant notifications आती हैं, and if you have a habit of looking at your phone, you are constantly distracted. तो आपका mind level पे मेरे को लगता है ये बड़ी परेशानी वाला काम है, that you are उसके आपके पर्सनल लाइफ पे भी oh वो yes करते हैं, yes you are not इफेक्ट able to करता है, focus, you know, बहुत सारी आपकी issues कई सारी पैदा चीजों होते में हैं. इफेक्ट yes इफेक्ट yes, करता है, yes मेंटली, फिजिकली. yes absolutely. Okay, well, let's come talk about your business. Okay, so you started business कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करा है. आज अगर कोई भी इस तरह का कोई भी बिजनेस करना चाहता है, किस तरह से वो अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है? सो माय क्वेश्चन अगेन, आपकी बिजनेस में जो आप कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशंस में, आपको क्या अपॉर्चुनिटी उस टाइम देखा था एंड कितना वो चैलेंजिंग था? और अगर कोई नया इंसान, नए कोई स्टूडेंट है या कोई यंगस्टर जो ये बिजनेस इस तरह का करना चाहता है, what they should look forward? So, Shaheen, I don't know your viewers would have idea about FMCG distribution. तो let me explain. थोड़ा सा मैं FMCG distribution को ही समझाने की कोशिश करता हूँ. तो FMCG, I think everyone would understand कि FMCG क्या हो गया? जो हमारा खाने पीने का आइटम है, डेली हाउस होल्ड का आइटम्स है, that is a part of FMCG, right? तो FMCG के अंदर आ गया. अभी FMCG डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेजरली हम 3 चैनल्स में डिवाइड करते हैं इसको. एक होता है जनरल ट्रेड, और यू कैन से ट्रेडिशनल ट्रेड. वन इज मॉडर्न ट्रेड, एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेट चैनल्स. अभी एक ई कॉमर्स भी है, तो सम पीपल कॉल मेक अ पार्ट ऑफ मॉडर्न ट्रेड, बोल देते हैं उसे ई कॉमर्स को, और सम पीपल कीप इट सेपरेटली. तो मेजरली ये पार्ट रहते हैं. जो जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, दैट इज जो आपका नुक्कड़ पे किराना स्टोर होता है, पान शॉप होता है, केमिस्ट शॉप होता है, मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, उन सब स्टोर्स को हम बोलते हैं जनरल ट्रेड, जिसमें आदमी खुद जाता है, काउंटर से सामान लेता है. तो दैट इज जनरल ट्रेड. मॉडर्न ट्रेड बाय डेफिनेशन हो गया, जैसे आपने डी मार्ट देखा हो, राज मंदिर देखा हो, यहाँ पर सोदीज देखा हो अपने गुड़गांव में. तो ये सब स्टोर क्या है, जहाँ पे पर्सन गोज इनटू द स्टोर विद अ कार्ट लेके गया, उसने अपना सामान पिक किया, एंड ही कम्स आउट एंड गेट इट चेक आउट. तो दैट इज मॉडर्न ट्रेड. ई कॉमर्स बताने की जरूरत नहीं है. ई कॉमर्स सबको पता है. ई कॉमर्स इज Amazon, Flipkart एंड एवरीबॉडी. क्विक कॉमर्स इज लाइक बिग बास्केट, ब्लिंकिट, Zepto and all, and Swiggy. ये सब हो गया. Still, I want to know what your opinion, like if you anyone want to create something, okay, इसमें और किसी भी पर्टिकुलर पे, स्पेशली रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, या नई एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, what would be your advice? Yeah, I mean, as I said, like, I'm not discouraging anyone to get into this business. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था कि हम कहते थे यार ब्रांड है एक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, अच्छा ही होगा. ठीक है. अभी वो थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. तो मैं कहता हूँ, इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू दिस बिजनेस, ऑफ कोर्स प्लीज गेट इनटू इट इफ यू वांट, बट डू योर रिसर्च बिफोरहैंड. करेक्ट. कि जो टारगेट मार्केट में आप चाह रहे हो बिजनेस करना, उस मार्केट में उस ब्रांड का, पर्टिकुलर ब्रांड का, उसके कंपटीटर का किस तरह का सेल्स हो रहा है, यू नो, हाउ इज इट गोइंग, सब चीज सोच समझ कर देन यू गेट इनटू इट. यू नो, पहले कैसे होता, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ यार ये इतने का बिजनेस है, इतना हो जाएगा, इतना खर्चा आएगा, और हो जाता है. बट स्पेशली इन सिटीज, मैं कह रहा हूँ छोटे शहरों में अभी भी काफी धंधा है, मेरे को जो लगता है. बट इन सिटीज, इन लाइक दिल्ली एंड यू नो मेजर सिटीज, बैंगलोर और व्हाटएवर, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इसलिए भी चैलेंजिंग हो रहा है कि देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट, एडेड कॉस्ट इन दिस सिटीज. एक चीज बताइए, चलो इसमें तो एक चीज मुझे समझ आ रहा है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मार्केट डायरेक्ट ये हो रहा है. व्हाट अबाउट द कंज्यूमर? कि कंज्यूमर पे इफेक्ट है. फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन आज यहाँ मिलता है, ओके, और ये प्रोडक्ट गांव में जब शॉप में मिलेगा, क्या प्राइस डिफरेंस होता है? नहीं, फॉर कंज्यूमर जनरली इट इज नॉट. तो हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ ऑफर्स. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपकी बातों से, डिपेंडिंग ऑन ऑफर्स ओके दैट आर बीइंग रन. तो अब इसका भी फर्क है. अभी ब्लिंकिट पे तो आप गए, फॉर एग्जांपल, आपने देखा मेरे को ये चीज चाहिए, आपने कंपटीटर भी देखा, लेट्स से टूथपेस्ट ही है, तो मैंने कोलगेट का देखा, किसी और ब्रांड का देखा, रेट देख लिया. हम जब किराना स्टोर पे जाते हैं
वहाँ पे सिर्फ जो भी दिखता है उसका MRP होती है। अब ऐसा है कि आपका रिलेशन अच्छा है किराना से, MRP से भी बेचेगा वो, लेकिन हो सकता है आपको डिस्काउंट भी दे रहा हो। जैसे मेरा किराना स्टोर जहां से हम लेते हैं एज अ फैमिली, मुझे पता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% डिस्काउंट लगाता है चीजों पे, राइट, लेकिन कोई भी लिखत में नहीं है। करेक्ट, हम उसके पुराने कस्टमर है तो वो दे रहा है, जो दे रहा है हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। तो वो एक फर्क है कि असली में कंज्यूमर को वो डिस्काउंट कितना मिल पा रहा है, इट इज लेस क्लियर इन द जनरल ट्रेड मॉडल देन द ई-कॉमर्स। करेक्ट। मतलब कंपनी ऑफर देते, कई बार कंज्यूमर को नहीं मिल पाता रिटेल में। हाँ भाई, क्योंकि उसको अब जैसे आपने देखे होंगे बैनर्स लगे होते हैं ना, तो अब कंपनीज भी दे आर वेरी स्मार्ट, राइट। तो अभी क्या करती हैं वो प्राइस ऑफ देने की जगह लेट से वो स्कीम्स जनरली रन करेंगी कि फॉर एग्जांपल 100 grams एक्स्ट्रा, यू नो, और 10 grams एक्स्ट्रा, दे वुड गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू दैट पैक, तो कंज्यूमर को मिल जाए। करेक्ट। या फिर उसके अलावा होता है कि एक तो क्वांटिटी में एक्स्ट्रा कर देते हैं, या प्राइस ऑफ उसी पे चला देते हैं, तो इट्स प्रिंटेड देयर। तो लेट से कोई प्रोडक्ट था 15 रुपए का, तो वो उस 15 को काट के यू वुड सी कि 10 कर देंगे, 12 कर देंगे, तो ताकि कंज्यूमर को तो दुकानदार के हाथ में नहीं रहा कि वो 12 में बेच रहा है, 10 में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है, बिकॉज वो वहां पे रिटर्न है। तो बेसिकली जितना मुझे समझ आ रहा है, कोई भी कंपनी है दे ऑलवेज गिव ऑफर, समटाइम जो कंज्यूमर को उनको नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो ऑफर मिलता है ना कि आपको इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, सो ताकि कंज्यूमर को मिले, इसलिए वो आई थिंक आई हैड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इतना डीप में कोई नहीं सोचता। वेल, कंपनीज का तो काम ही इस पे चल रहा है, तो दे हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। आई मीन, तो क्योंकि इट्स अ बिग डील, राइट। एंड एट दीज टाइम्स कस्टमर लॉयल्टी इज इवन हार्डर टू गेट। एग्री। हर चीज में इतने ब्रांड्स हैं, इतनी चॉइसेस हैं, और आपको आदत भी, क्योंकि अब आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो अब आप ब्लिंकिट पे जा रहे हो, आपको कोलगेट नहीं मिला ना लेट्स से, और पेप्सोडेंट मिला फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग, तो आपको कह रहे हैं ठीक है पेप्सोडेंट भी ले लेते हैं, हाँ। जैसे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ब्रांड लॉयल्टी भी कम हो रहा है। एग्री। ऑफलाइन बिजनेस में, मतलब ट्रेडिशनल ट्रेड में, मुझे लगता है ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा था, कस्टमर को रखना आसान था अपने ब्रांड के साथ। करेक्ट। ई-कॉमर्स में इट्स गेटिंग डिफिकल्ट। एग्री। या जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, हो सकता है उसमें 5 अलग अलग ब्रांड का हो, बट व्हाट वी बाय लास्ट टाइम हम उसी को उठा लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द मेन पार्ट जो मुझे प्ले करता है, दैट इज द प्राइस। ओके, प्रोडक्ट वही है, टूथब्रश या टूथपेस्ट, पर उसका जो प्राइस डिफरेंसेस है, समटाइम वी गिव अ ट्राई। So earlier it was not happen, it was just like कि प्राइस तो वही होगा, even we don't even ask that, भी नहीं है, पता भी नहीं है, हाँ ऐसा होता है। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम, राइट। इंटरेस्टिंग है ना। आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत कम लोगों को नॉलेज है, इसमें जानकारी है। मतलब क्योंकि यार जिसका काम नहीं पड़ रहा है, एज अ कंज्यूमर नोबडी जनरली थिंक्स, तो कंज्यूमर के लिए क्या मतलब है, अब ये ना अच्छी चीज है बुरी चीज है मुझे नहीं पता, कंज्यूमर के लिए अच्छा हो रहा है इन अ वे कि ये सब इतना कंपटीशन होने की वजह से कंज्यूमर इज गेटिंग अ बेस्ट डिस्काउंट्स, बेस्ट डील्स इन दिस, राइट। बट मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मेरा तो क्लाइंट स्विगी भी है, ब्लिंकिट भी है, मेरा क्लाइंट ब्रांड भी है ना, तो मेरे को लगता है फॉर ब्रांड्स अब क्या हो रहा है कि देयर प्रॉफिट्स आर गेटिंग स्क्वीज्ड बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। तो अब कैपिंग खत्म होती जा रही है अब, और कंज्यूमर का भी माइंडसेट ना इट्स बिकमिंग प्राइस ओरिएंटेड देन एनीथिंग एल्स। तो कुछ पर्टिकुलर चीजों में तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए इसलिए चाहिए, बट बहुत सारी चीजों में दे आर गेटिंग इनटू प्राइस। तो आज मेरे को लेट्स से भुजिया खाना है, मेरे को बिकानो का भुजिया है, मेरे पे हल्दीराम का भुजिया है, मेरे पे नाना जी का भुजिया है, बाबा जी का भुजिया, लेट्स से 4-5 ब्रांड है। तो पहले क्या होता था, मेरे को नाना जी का खाना था, आई फाइंड नाना जी, मैं अपने दुकानदार को बोलूंगा जिससे मैं लेता हूँ कि भाई नाना जी की भुजिया आते ही बता देना यार, या फिर आई ओनली नीड दैट, तो वो भी मेक श्योर करता था, उस पर होती थी। अभी आज क्या हुआ है, नाना जी का लेट से इट्स अ एग्जांपल आई एम सेइंग 100 रुपए केजी है, और हल्दीराम का लेट से 150 रुपए केजी है या 120 रुपए केजी है, और लेट से बिकानो का 150 रुपए केजी चल रहा था, उसने कहा यार 50 रुपीज डिस्काउंट 100 रुपीज में ले लो। तो एज अ कंज्यूमर मैं कहूंगा यार इसकी भी तो ठीक ही होती है, तो मैं उस 100 रुपए का आज ले लूंगा। कल मेरा नाना जी अगर 80 रुपए का हो गया तो शायद मैं नाना जी उठा लूं।
तो Got it. ये एक प्रॉब्लम है एंड ब्रांड्स आर फीलिंग दैट हीट टू. तो ब्रांड्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट पैकेजिंग फॉर क्विक कॉमर्स. दे आर फाइंडिंग वेज. लेट्स सी कि कैसा होता है. बट कंज्यूमर इज द विनर इन अ वे. एज अ कंज्यूमर I feel like कि price wise I am the winner, but did I really need those many choices? Correct, correct. I was happy with like only Nanaji Bhujia and another editor. People sometimes try, give a try, right? Yes, yes, yes. But it's yeah. तो अब बहुत सारी बातें हो जाएंगी इस बारे में. But it's a decision overload. you Yeah, know? completely decision. Yeah, ना. It's a overload of decisions you have to make. You know, so I think it's overwhelming for your mind कि यार इतनी choices है तो you get confused more often. Confused, yeah. Yeah. Even people like आजकल के जमाने से नहीं know why people are especially see the new generation. Yeah. हमारी जनरेशन क्या था, you saw that, you know that very well. Yes. अब जो नए जनरेशन है ना, they are like उन लोगों की चाहती अलग है. Yep. है ना? True. क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं लगा ना, हटा के दूसरा उठा लिया. मिनटों में. I mean, there is no loyalty. I mean, it's different. It's Okay. completely different. Okay, so I want to know कि what is the in your journey, what are the key 3 lessons you have learned? मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी एज ए एंटरप्रेन्योर, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो एज आई वाज सेइंग राइट कि सारा काम मैं खुद ही कर रहा था इनिशियली. फिर मैं सो लेट्स से मेरे बिजनेस में, लेट्स से पर्टिकुलर टू माय बिजनेस, there is a infrastructure, there is a stock take, there is a warehousing, there is a supply chain, there is a salesman, supply man, billing, accounts, all these parts are there, right? So in the beginning, I was involved in like everything. Not even in the beginning, like until like 2 years back, I was very much involved in lot of things in my business. मेरी key learning, जो सबसे important learning है, and I think I took lot of time to learn that, I should have hired the right people In the beginning. earlier. Interesting. I would have trusted them more. So it was my baby, right? It's my business, right? So I was like, अरे नहीं यार, I am the only one who can think good about my business, you know? मुझे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब गड़बड़ कर देंगे. So I think that was a big mistake. So this is the one. I'm gonna come to the point. Sure, sure. Okay. Okay. So that was the key thing. Biggest one. Yeah. The second thing is, I think it's about persistence और resilience. अब persistence resilience कैसे मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है. मतलब मेरे साथ तो हुआ है. I don't know every business won't have that. कि we had lots of ups and downs. हमारा शुरू में अच्छा चल रहा था. First downfall came when Big Bazaar went out of business. We lost like big chunk of money at that time because they just like within like fortnight they Market just का वही पलट दिया. went out Yeah. of the business. तो हमारे लिए वो बड़ा एक चैलेंज हुआ. तो वो इतना बड़ा चैलेंज था एट पर्टिकुलर टाइम कि मैं ऐसे सोच रहा था कि यार अगर ये बंद हो गया, अगर वो पैसे नहीं आए, मोस्ट ऑफ द अमाउंट डोंट कम आउट यू नो एज पेमेंट्स, तो आई माइट वुड हैव टू वाइंड अप. You are feeling that Oh, yes, it was a huge amount. So at that time, almost 45 to 55% business was coming from the Big Bazaar only. Okay. So that was a big deal. तो मेरे को वहां से एक चीज सीखने को मिला, 2 चीजें. एक तो you shouldn't get scared. You should start thinking differently. You should try to find out a way कि कैसे इससे निकल सकते हैं. उस पे जल्दी टाइम लगाकर पहुंच जाना चाहिए, rather than keep crying or feeling bad about yourself कि यार हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. उन सब चीजों में ना ध्यान दें. Love that. उसका रास्ता निकालो और उससे बाहर निकलो. I love पहला that. learning. Yeah. दूसरा, इतनी पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Don't. There is a saying, right? Yeah. Don't put your all eggs in one basket. Okay. There is a saying. Yeah. तो कहते हैं भाई सब एक टोकरी में मत डालो, अगर वो टोकरी टूट गई, गिर गई, सारे अंडे गए. तो हमें समझ आया कि यार हमें क्लाइंट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी है. Yeah. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील मोर कंफर्टेबल कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अभी भी, लेकिन मैं किसी भी एक क्लाइंट पे आई डोंट लाइक उनके भरोसे में डिपेंडेंट मोर देन लाइक 15% ऑफ द ओवरऑल बिजनेस. मैंने एक मतलब कैपिंग कर रखा है. Nice. I think ये वाला पार्ट आपका तभी आता है. कभी कभी ये होता है, जैसे आई लाइक द आइडिया, you told me that फर्स्ट आपकी जो हायरिंग पहले कर लेना चाहिए थे विद गुड पीपल. आई अंडरस्टूड दैट राइट पीपल विद फॉर द राइट टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
Sometimes your mind is not working in that way, and the other person will be help you in other way. Yeah. As a leader, I think you are a HR guy, man. In the end, Yeah, you should only be the HR person. correct. Find the right people, fit them, help them to grow, Yeah, help them to, do their business or work properly. right. That's how it should be. So So I'm learning too, but I'm trying to get there. yeah, let me tell you, whole the conversation में in doing 3 जो आपने बताया ना, this is the one of the best podcasting line. मतलब I felt that, okay? Podcast इस तरह का ही होता है. Yes. तभी you delivered the word. It's interesting. Yes. Okay, I'm asking. I would want to know in that aspect in business, you have experienced it in that way. What are the key advice to the young generations, like student or like young generations? To get into entrepreneurship, Or yeah, in it could be general? anything. or it could be anything. Yeah, It could be personal. It could it's be your anything. personal Yeah. advice. Okay. So yeah, personally, I would strongly request, ask, tell, suggest, never drink or smoke. Don't get into any such vices. Either it's a one drink or two drinks, doesn't matter. If it's if you're a smoker, is it a cigarette? Is it a gutka? Is it a hookah? Whatever. Vape. Don't get into this, man. Okay, one of the thing. What's Yeah. next? And I know it's not about entrepreneurship, but this is very close to my heart because I am going through all these issues and I know like how important it is. As an entrepreneur, how it is important. Understand Do you think this. if anyone have those kind of bad habits, that could be replaceable? Well, that's a personal choice, right? Okay. The reason I wanted to mention these things in the entrepreneurship journey, these things also takes your time, your mind away from your goal. Correct. So it's not just about don't get into bad habits. Even if you just think as an entrepreneur or as a businessman or anybody who wants to succeed, you don't know how much time, how much focus you would gain if you haven't spent that much time and efforts in these things. Interesting. Yeah. So it is related to business too. I totally agree with that because I sometimes I feel that how much it take time when you think something else when you working focusing. I mean, I used to do that. Okay, I have to understand that this is really important. I'm struggling with And- these issues, so I And can I relate. think this what's important, that is the time. Yes. Okay, and the time you're investing, that will be never come back. Yes. Okay, Exactly. never come back. Yes. So when you asked for like key 3 points, that was my second point. You are average of 5 people around you. Correct. Yeah. It's a saying. I don't know who said it, but I think it fits very well. Mm. So for new generation or for new entrepreneurs, doesn't matter. Choosing the right friends is the key for you to success. Okay. It's important. And that smoking, drinking is also related to the same thing. So Correct. choose your friends wisely. Mm-hmm. Second. Third thing I would say that whoever is starting in their journey, generally people are lonely and especially in these times they are only on social media and stuff. Have mentors in life. Everyone should be. Find mentors. I found a couple of mentors. I had inspirational people like my uncle, my mom, my dad. But I think I would have been better if I had mentors too. I mean, there are the couple of friends or relatives who I have, gone to for my, for advices time to time. But don't try to do everything by yourself. Find mentors, take help, either it's family, friends. Talk learn from about your people. things which is Yes. going around you. Yes. Okay. Yes, it's easy. You might be missing a lot of mistakes. So I think it's important to be open. Yeah, I completely agree. Sometime, if I take a big step in my life, okay, I talk to many people, Yes. okay, and not exactly in the same way, but I do. What I try to understand is that what the people think about it, that eventually I'm going to do my own, okay, I will find my right way. But when I heard the different opinion, then I eventually find like either be interesting, either be like something else. So why the opinion matters to you? I mean, No, it's that's not what an opinion. You have to overcome, right? No, it's not about the opinion. Sometime if you're taking big step,
I'm telling you, big step is a quite different thing. Yeah. So you have to think before you do. Oh, Okay, yes, absolutely. and it's all about the opinion. Mhm. Like if I'm thinking the entrepreneur is something crazy at parts, I believe that Mhm. entrepreneur, whoever is the entrepreneur, they have to be crazy. A bit. Okay, Yes. because if you're not enthusiastic what you want to do, Yes. you can't do. Yes. Okay, so you have to be gone crazy so that आपके mind में जो है so execute. Maybe you're gonna be fail, and fail is a completely okay. Mhm, mhm. Okay, Yeah. पर if you want to be the quite bit like हाँ जो भी करना अच्छे से करना है, let's see the around, Mhm. let's see around like as a sample, okay, and talk about how it's feedback I'm receiving. So Mhm. take it positive. Okay, Yes. देखो ये चीज अगर करना है बोले पॉजिटिव, आप ये भी कर सकते हो कि भाई करना है तो कर. पॉजिटिव फीडबैक क्या है? Uh, नो, इफ राइट पीपल डू राइट थिंग, दैट आई वुड yes. से. Yes. Okay. Absolutely. Absolutely. सो बी पॉजिटिव व्हाट यू आर डूइंग, Yes. एंड सुनो सबकी, करो अपनी, Karo. दैट आई वुड Yeah, से. yeah. And open to open to criticism too, राइट but take that with positive attitude. राइट you राइट. know. So maybe somebody would say अरे यार तू तो अच्छा नहीं है काम में. मेरे को बहुत लोगों ने बोला अरे यार तू तो you don't know how to run a business. Things have happened. ओके, सो यू डू इन्वेस्टमेंट एज वेल, राइट? Yes, a bit. ओके, Yeah. सो मुझे ये जानना है, सबसे पहले मुझे बताइए किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप मुझे बताइए. सो आई एम कम टू द अदर पॉइंट. Well, so the kind of investment I do, I do a little bit of it. I'm Mhm. starting into it, but I try to help startup companies, with the investment, ओके. right? Not directly, of course. I'm not on like one-to-one investments. So I am with a couple of companies where, they find a project to invest in, and that startup would, pitch it to us, a bunch of other investors, and it's our call then if we want to invest in certain startups or not. That's the one thing. The other thing I really liking, and it's not about investment as such, but that how I want to do more of it. The reason is, so in my business, right, in distribution business, lot of startup companies come to me for advice, for suggestions, or for their go-to market strategies. It's They want to talk yeah. about it, Yeah. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस का जैसे एक्साइटमेंट था, व्हेन आई वाज बिल्डिंग अ बिजनेस, आई एम वेरी एक्साइटेड, राइट, कि अरे ठीक है. बनाना है. एक सर्टेन लेवल आ गया, आई गेट सेटिस्फाइड. अभी जो मेरे को एक्साइट करती है चीजें, वो ये है कि इन लोगों में इतनी एनर्जी है, दे आर सो शार्प. एक 22 साल का लड़का आएगा आपके पास, एंड आई विल गिव यू एग्जांपल, एंड ही वाज लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इन बेवरेज. तो आया, तो मैंने कहा इतना यंग है, तो एक आपको रहता है अरे इसको क्या पता होगा, है ना. तो मैंने कहा बहुत जल्दी है, लेकिन आई अप्रिशिएट हिम बिकॉज he has that courage to start it from in that age, and with so much confidence he's coming all out, and and he open to ask for help, right. I was like interacting with him like couple of hours we spent, and when I was talking to him and I was telling him about good, how your GTM can be, what you can do about your product and all that stuff, man, that guy was so smart. He knew each and everything to the पैसा. उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट का ये इतना ऐसा है, अगर मैं इस कलर को चेंज करूंगा अपने लेबल में तो मेरा ये आधा पैसा बढ़ जाएगा कॉस्टिंग का. I mean, he was Very so sharp. yeah, very sharp guy. And there are lot of other examples. तो स्टार्टअप का मेरे दिमाग में वहां से आया कि यार मेरे को यार कुछ ही तरह तो हेल्प करना चाहिए. तो एक तो मैं एडवाइस से कर सकता हूँ, अब चाहे अच्छी है कि बुरी है, Okay. बट तो एक तो वो आई लाइक टू डू दैट, एंड आई डू ट्राई टू हेल्प पीपल विद दैट. लेकिन उसके साथ साथ फिर मेरे को लगा, Do you think your mindset is changed after meet lot of people, young people, like? हाँ, बुरा लगता है यार थोड़ा सा कि अपने में इतनी एनर्जी क्यों नहीं है. Okay. Okay. I mean, I wish I had that kind of energy. I mean, it's amazing to see Because those things. I think it's inspirational actually. Yeah. So मतलब आपसे कभी कभी ऐसा होता है, if you think कि you're the biggest one, not exactly you're the one only. आपके कम एज का भी लोग हो सकता है.
ये Okay. मेरी मिसकंसेप्शन मेरे साथ भी है. ओके आपके पास No, था या अभी भी है? बहुत सारा चला गया बट आई थिंक इट्स स्टिल देयर. Okay. लेकिन मैक्सिमम इट्स आउट ऑफ द That's the point, you know, I always like to listen. या. Okay. Suno. Okay. हाँ. And sometimes people, when you hear, either be you will be learn, either be you will be give. Okay, there's the two things. सही बात है. Okay, मुझे ये बताओ आप बिजनेस करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए हमारे पास एज ए यंगस्टर? सो बिजनेस करने के लिए आई मीन कोई भी किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर इज कमिंग फ्रॉम. बट जो चीजें मस्ट है, वन थिंग इज ही शुड बी अ गुड लर्नर. भाई you have to learn regardless of if it is related to you or not. You should be focusing on learning. अब लर्निंग का तरीका एक तो ये है कि बिजनेस से पहले व्हाट यू डू रिसर्च एंड स्टफ, बट व्हेन यू स्टार्ट यू नो बिजनेस, मैं बोलता हूँ कि यार असली एमबीए ना काम करने से होती है. True. जो पढ़ाई किया है वो तो इट वाज लाइक इट्स गुड टू हैव दैट नॉलेज, बट असली एजुकेशन कम्स व्हेन यू अप्लाई, when you fail. वो जो learnings बनती है, I You think must- that develops you. You must meet a lot of people who are not really educated but doing good business. Absolute. Oh, tons of them. No, right? Oh, so I feel कि education से यार इतना business का relation नहीं है education से. Yeah, there is so many entrepreneur I know Oh, yes. who was like, you know, just doing a Absolutely. business. इसका कोई relation है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है. हो सकता है कि हम इतने competitive environment में रह रहे हैं और education इतना important बना भी दिया because we were developing nation, right? तो डेवलपिंग नेशन में क्या है, सबको रास्ता दिखता है कि एजुकेशन के थ्रू ही है, विच इज गुड फॉर एज अ इंडिया. एजुकेशन का नहीं होता तो इतने सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, तो एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट. राइट राइट. एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन शुड बी देयर. लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही रास्ता है वो भी सही नहीं है. भाई आपको इंग्लिश आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, साइंस का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी जो चीज में जाना है ये चीजें तो लगेंगी ना कहीं ना कहीं. करेक्ट. आई थिंक मेनली क्या मैटर करते हैं नॉलेज. Knowledge comes from the communication conversation. Yes. Okay, and the consume, what do you consume? Okay, that's also one of the other way, like आप क्या सोशल मीडिया से आप कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है. मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीखना करके जो सीखता है ना वो सबसे बड़ा टीचर है, जो करना सिखाता है. फैक्ट है. तो यू जस्ट यू नो बिजनेस में जाना है, जस्ट गो स्टार्ट स्मॉल, डू व्हाटएवर इट टेक्स. आई थिंक यू नो ऑलवेज इट आई यू नो देयर इज एन इन्वेस्टर जो शार्क टाइम में बोलते हैं कि अब यू नो हमने इससे पहले 3 बिजनेस करा, इससे पहले 4 बिजनेस करा. सो दे ऑलवेज डज सम बिजनेस, ओके, एंड दे फेल. And I think fail is one of the key that is make you better. Yes. Okay, and that make you up yourself. और वहीं से आप सीखते हो कि भाई यही तो होता है कि Absolutely. क्या छूट गया, सही बात है. कि ये हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम वी विल मेक इट बेटर. एंड हमेशा यही चीजें होते हैं, देन यू ग्रो. ट्रू. ओके, डू यू थिंक मनी गिव यू हैप्पीनेस? हाँ, गुड क्वेश्चन. आई have been looking for this answer for a while and मेरे को जो What's समझ your आता है, thoughts? मुझे क्या लगता है, तो हमने एक ना अपने टाइम में पढ़ा था, एमबीए के टाइम में एक कंसेप्ट रहता है नीड, वांट्स एंड डिमांड. ठीक है, नीड हो गया जो आपका रोटी कपड़ा मकान टाइप से हो गया, वांट हो गया कि आप थोड़ा सा बेटर चाहिए, डिमांड हो गया कि मुझे ये चाहिए, लग्जरी चाहिए ना, गेट. तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? बट हैप्पीनेस और मनी का रिलेशन जो मुझे समझ आता है, आपका जब नीड पूरा हो गया, भाई यू कैन हैव अ फूड ऑन योर टेबल विच यू लाइक, यू नो, विच इज अ डिसेंट फूड, यू हैव अ होम टू लिव इन, यू हैव अ फैमिली. तो नीड तो आपका पार्ट पूरा हो गया. ठीक है, तो नीड पूरा हो गया, तो हैप्पीनेस नीड के बाद तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मनी के ऊपर नहीं रही. इन अ वे ऐसा नहीं है कि उतने भी पैसे ना हो तो आप खुश नहीं रह सकते. बिल्कुल रह सकते. बहुत सारे लोग हैं बहुत खुश रहते हैं, उतने भी पैसे नहीं है, बट दैट इज एट देयर, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? लाइक तो मेरे अगेन आई एम लिए आस्किंग यू कि आपको आपके लिए क्या है, आपके लिए मनी क्या है कि आपको खुशी देती है, बहुत पैसा है? तो मुझे क्या लगता है कि मेरे लिए एक वो जो नीड वाला फैक्टर था, तब तक तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन मनी इन सम सॉर्ट ऑफ वे.
बट उसके बाद वो खत्म हो गया, हैप्पीनेस से तो रिलेशन उसका खत्म हो गया. बट व्हाट मनी प्लेज अ रोल इन माई लाइफ कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड राइट नाउ, right, with my life and everything. But there are certain goals you want to achieve, right? You might have some idea, crazy If you have, idea, then- if you have, and you need certain, amount for to achieve that thing. Then again, money, comes back to it. But in relationship to happiness, it has nothing to do with it. Do with money. Once you are settled in your life, once you know कि you are taken care of. और इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं कि थोड़े टाइम पहले मैं सोच रहा था कि यार तू मेटेरियलिस्टिक तो है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब इन जनरली, मतलब कुछ नहीं चाहिए, मतलब अच्छा खाना चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए. आई डोंट गो आफ्टर ब्रांड्स, आई डोंट गो आफ्टर लग्जरी कार्स, मतलब मेरे को लग्जरी से कोई, दैट डजंट गिव मी हैप्पीनेस. बहुत सिंपल. तो मुझे लगता है हैप्पीनेस नहीं देती है चीजें, तो आई एम फाइन विद इट. So my question now is, what give you happiness? आई एम मोस्ट हैप्पी व्हेन आई एम विद पीपल, Interesting. with the right people, of course. Mhm. I cannot be happy with everyone. With the right people. Yeah. So I love spending time with my family, with my kids especially. And of course, I love spending time with my friends. So I think I'm most happy with around people. And that is about happiness. And as you were saying about the money and the happiness link, right? तो मुझे लगता है कि जो मुझे सेटिस्फैक्शन और इट्स अ हैप्पीनेस, आई डोंट नो, दिस वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल इन अ वे. मुझे लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन या खुशी, सुकून वो तब मिलता है कि जब मैं सोचता हूँ कि यार तू ले तो कुछ भी सकता है. मतलब ऑफ कोर्स मैं जेट नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब जितना मेरे को लगता है मेरे सर्कल में कि अच्छा एक बड़ी गाड़ी ले सकता है क्या, हाँ यार ले सकता हूँ. जुड़ता है क्या, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट वो मैं ले सकता हूँ, वो जो कॉन्फिडेंस, जो सिक्योरिटी देता है, आई थिंक दैट इज अ ट्रू मनी रिलेटेड हैप्पीनेस फॉर मी. Is there any best advice you received? एग्जाम्पल है, probably आई डोंट नो हाउ गुड दैट आंसर इज. मेरी मदर एक बात मेरे को बोलती है, काफी बार बोला उन्होंने, कि तुम चाहो तो तुम पहाड़ भी उठा सकते हो, लेकिन आपको चाहना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. But that was a long time back. That's your journey said that, I would say. Like, imagine yourself, where you are started from. Your whole house will be right, you take the challenges, then you move abroad, then you have certain things earned, right? You come back to the same family. Now you build it around lot of things. Well, luckily, देखा जाए तो it's not mountain. What is the mountain? It's just the image of your कहते हैं challenge. हाँ, challenge. Yes. Okay. देखो आपकी मम्मी जो बोला था, I can feel that. I can feel that. What it is. देखो माउंटेन अगर आपके माइंड में सिर्फ ये चलेगा कि भाई पहाड़ को कैसे उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, साइकोलॉजिकली सोचो तो इट्स नॉट द पहाड़ एक्चुअली. दैट्स द सब्जेक्ट ऑफ द इज द बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव. ओके, दैट इज यू टोल्ड मी इन द बिगिनिंग कि आपने घर के खुद की जमीन को किसी को गिरवी दे के आप विदेश गए हो, करेक्ट? दिस वर्ड. फिर उसके बाद यू कम बैक, यू गेट बैक दिस. फिर उसके बाद आपने खुद के लिए करा. नाउ यू बिल्ड इट बिग, लाइक कंपनी. ये सारी चीजों को देखो ना, वो इतने बड़े थे. अगर उस हिसाब से देखते तो मुझे भी लगता है कुछ किया है, लेकिन मेरे को लगता है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं हमसे बहुत अच्छा कर पाते हैं. इंडिया में बेशक पानी में कुछ ऐसा है, बेशक कंप्लीटली एग्री कि सब जीते हैं. हाँ, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड. उनको देखता तो मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया है. खुद को देखता तो लगता है यार तूने सही कर लिया यार. यही तो हमारी जर्नी होती है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट ऑफ द ओपन टॉक शो. Shaheen, pleasure is all mine. I really loved speaking to you. Yeah.